انسان اور خواب کا رشتہ اس وقت سے قائم ہے جس وقت سے اس زمین پر پہلے انسان حضرت آدم نے قدم رکھا۔ لیکن صدیوں کے ارتقائی سفر کے باوجود آج تک خواب کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ سامنے نہیں آیا جس پر دنیا کے تمام مکاتب فکر متفق ہوں۔ And of course the aliens filed into the room and levitated me and took me out of the room and it was a very bizarre experience. خواب کیا ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ خواب سچے ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں پہلے بھی پر اسرار سمجھے جاتے تھے اور آج بھی اسرار کی دھند میں چھپے ہوئے ہیں۔ نیند، خواب اور تعبیر، یہ تین لفظوں کا انسانی زندگی سے اٹوٹ رشتہ ہے، لیکن آج بھی یہ تینوں الفاظ فطرت کے حیرت انگیز مظاہر ہیں۔ جس طرح آج تک نیند کی کوئی قابل اعتماد سائنسی تشریح سامنے نہیں آ سکی، اسی طرح خواب اور تعبیر کے بارے میں کوئی تجربہ عالم وجود۔ ماہرین نفسیات خواب کو منطق کا الگ جامہ پہناتے دکھائی دیتے ہیں۔ سائنسدان ان سچے جھوٹے خوابوں کے ذکر پر مسکرا کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے گلی کوچوں، بازاروں، محلوں اور سڑکوں سے گزرنے والا ایک عام انسان خوابوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی خوابوں میں کھویا دکھائی دیتا ہے تو کوئی تعبیروں میں الجھا دکھائی دیتا ہے، کوئی سچے خوابوں پر یقین رکھتا ہے تو کوئی خوابوں کی اہمیت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ خواب بنیادی طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جو تخویف الشیطان کہلاتا ہے، یعنی شیطان خواب میں انسان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ خواب کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان کی حدیث النفس کہلاتی ہے، یعنی انسان کی جو ڈیزائرز ہیں، اینگزائٹیز ہیں، اس کے لاشعور کے اندر اگر کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو بعض اوقات انسان اسے خواب میں دیکھتا ہے۔ لیکن خواب کی تیسری قسم انتہائی اہم ترین ہے اور وہ رویا صادقہ کہلاتی ہے، یعنی سچے خواب۔ سائیکالوجی یا علم النفس کے اندر جب خاص طور پر انسان کے ذہنی رویوں سے بحث کی جاتی ہے تو خواب کو محض انسان کی اینگزائٹیز، اس کے ڈیزائرز کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ سائیکالوجی کے پیش نظر جب آپ تخویف الشیطان یعنی شیطان کی طرف سے خواب میں ڈرایا جانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو سچا خواب دکھایا جانا، جب آپ اس بارے میں بات کرتے ہیں تو جدید سائنس ان دونوں قسم کے خوابوں کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ زمین کی چھاتی پر آنکھیں کھولنے والا ہر کردار خواب دیکھتا ہے۔ کوئی خوابوں کی سرزمین سے سرسری گزر جاتا ہے اور کوئی عمر بھر خوابوں کا پیچھا کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا خواب کسی دماغی ہارمون کی کمی بیشی کے مرہون منت ہوتے ہیں یا جسم میں کیمیائی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جب خیالات کا ہجوم ہو، بندہ ایک بات پر فوکس کر رہا ہو اور اسی بات پر اس کا دماغ اٹکا ہوا ہو تو پھر اسے خواب آتے ہیں۔ یہ تو ایک طرف کا جو ایک نقطہ نگاہ ہے وہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب آتے ہیں۔ باقاعدہ ایک فرشتہ ہے ملک الرؤیا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا فرشتہ، وہ مقرر کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے خواب میں جو مناظر ہیں وہ نظر آتے ہیں اور وہ عموماً صحیح ہوتے ہیں۔ کہیں نفسیات کی باریکیاں انسانی رویوں میں الجھی ہوئی ہیں تو کہیں روحانیت کا قیاس و تخیل
ख्वाब का कोई और चेहरा दिखाती है। الصبح بدا من طلعته والليل ऐसे में दीन इस्लाम ख्वाब के झरोकों से उस रूहानी दुनिया की सैर कराता है जो 1400 बरस कबल मुनकशिफ हो चुकी है। ख्वाब बुनियादी तौर पर अपनी इंटरप्रिटेशन के एतबार से दो किस्म के होते हैं। एक ख्वाब वो होता है कि जिसकी ताबीर की जाती है, यानी आपने ख्वाब में दूध देखा तो इसका मतलब है कि इल्म, आपने ख्वाब में खुद को पूरा लिबास पहना हुआ देखा तो इसका मतलब है हया। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि वो हकीकत पर मबनी होते हैं, यानी जिस तरह से ख्वाब में देखा जाए एग्जैक्टली उसी तरह से हकीकत की दुनिया में अमल आपको नज़र आ जाता है। आपने ख्वाब में देखा कि किसी का इंतकाल हुआ और आप जब सुबह उठे तो उसके मरने की खबर आ गई। तो अलबत्ता ये देखना ज़रूरी होता है कि कौन सा ख्वाब ताबीरी है और कौन सा ख्वाब ऐसा है कि जिसको उसकी हकीकत के एतबार से देखा जाएगा। बहर सूरत इंसान को बुरा ख्वाब देखने के बाद कुछ ना कुछ अल्लाह की बारगाह में मुसलसल 3 दिनों तक सदका कर देना चाहिए। इल्म व शऊर कभी गुमान की दहलीज पर दस्तक देते हैं तो कभी उनके कदम शक के सहरा में जा भटकते हैं। कभी ये कदम यकीन के रास्तों की जानिब उठ खड़े होते हैं। इल्म व आगही की दलीलें उस वक्त खामोशी इख्तियार कर लेती हैं जब किसी सच्चे ख्वाब की आवाज सुनाई देती है। क्या ख्वाब सच्चे भी होते हैं या इंसान महज इत्तेफाकात को सच्चे ख्वाबों का नाम दे बैठता है? अगर सच्चे ख्वाबों का वजूद मुसल्लम है तो वो कौन सा इंसान है जिसकी आंखों में सच्चे ख्वाब उतरते हैं, और वो कौन सी निगाहें हैं जो सच्चे ख्वाबों से महरूम हैं? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी वाज़ेह हदीस है कि अस्दकुकुम मक़ाला अस्दकुकुम रुया, कि तुम में से अपने कौल का जो जितना सच्चा है उसके ख्वाब उतने ही सच्चे होते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी, जो जितना अल्लाह रसूल से नज़दीक होगा उसके ख्वाब उतने ही सच्चे होते हैं। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो जो मेरे आका अलैहिस्सलाम से जितना नज़दीक होगा अपनी आमाल के ज़रिए, उसके ख्वाब उतने ही सच्चे होते हैं। जो जितना दूर होता है उसके ख्वाब आमतौर पर फिर सच्चे नहीं होते। आम तौर पर देखा गया है कि नींद में डूबे हुए शख्स की आंखों की पुतलियां ऐसे गर्दिश करती हैं जैसे वो दौरान ख्वाब कोई मंजर देख रहा हो। क्या ख्वाब आंखों से देखे जाते हैं या नहीं? अगर आपके सामने कोई शख्स सो रहा और वो उठने के बाद कहे कि मैंने ख्वाब में देखा, तो आप कह सकते हैं कि जनाब मैंने तो तुम्हें देखा कि तुम्हारी आंखें बंद थीं, तुमने किसी की बात को नहीं सुना। लेकिन आप गौर कीजिए कि अगर हालत ख्वाब में सांप किसी इंसान को डंक मारता है, इंसान ख्वाब में रोता है, तो उस तकलीफ को, उस अजियत को वो बेदारी के बाद भी महसूस करता है। ख्वाब का ताल्लुक इंसान के ज़ाहिरी हवास के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक इंसान की रूह के साथ है। और इसीलिए वही इलाही को समझने के लिए और वही इलाही के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के एक्सपीरियंस को, उसकी तस्दीक करने के लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इंसानों को ख्वाब की मिसाल देकर समझाया कि देखो, तुम बज़ाहिर ख्वाब के अंदर अपनी आंखों से ना देखते हो, ना कानों से सुनते हो, ना ज़बान से बोलते हो, और ना ही तुम्हारा जिस्म ट्रैवल करके कहीं और जाता है। लेकिन तुम हालत ख्वाब में एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी चले जाते हो, लोगों से बात भी करते हो और अपने इनर एक्सपीरियंस को तुम लोगों के साथ शेयर भी करते हो। तो लिहाजा ये बात ध्यान में रख लीजिए कि ख्वाब का ताल्लुक हमारे ज़ाहिरी सेंसेस के साथ नहीं है और ना ही ख्वाब का ताल्लुक अक़ल के साथ है, बल्कि ख्वाब का ताल्लुक आलम रूहानियत के साथ है। और बिलखुसूस इसकी तस्दीक का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि मुझे भी ख्वाब का एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए मैं लोगों के ख्वाबों के बारे में तस्लीम कर लेता हूँ कि लोगों को भी ख्वाब आते होंगे। कुछ रूहानी उलमा कहते हैं कि सोने के बाद इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलकर नित नए जहानों का सफर करती है, लेकिन जब आंख खुलती है तो दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले ख्वाबों के अक्स के सिवा
कुछ नहीं होता। यहां ये सवाल गौर करने वालों को उलझा कर रख देता है कि अगर नींद के दौरान रूह जिस्म से निकल जाती है तो जिस्म रूह के बगैर जिंदा कैसे रहता है? कुरान करीम में यहाँ पर ख्वाबों का जिक्र नहीं है बल्कि नींद का जिक्र है कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़दा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। तो ये ख्वाब की बात नहीं हो रही। जो शख्स भी जब सो जाता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। फिर अब ताला फरमाता है कि जिन्हें ज़िंदा करना होता है तो रूह लौटा दी जाती है और जिन्हें उस हाल में मारना होता है तो उनकी रूह लौटाई नहीं जाती। तो इसीलिए कहते हैं कि नींद भी एक तरीके से यानी बज़ाहिर एक हमें मौत का मंजर जो है वो दिखाती है। तो नींद भी एक तरीके से मौत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है फिर रूह उसकी वापस कर देता है। बुजुर्ग कहते हैं सोया और मरा दोनों बराबर हैं। बुजुर्गों की इस बात को रूहानी दलीलों में कहा जाता है कि बेदारी की हालत में रूह का अपने लिबास से रब्त बरकरार रहता है और रूह अपने लिबास की हिफाजत के लिए चौकन्ना और मुस्तैद रहती है। लेकिन मौत की हालत में और अपने लिबास यानी जिस्म से रिश्ता तोड़ लेती है, जैसे रूह जिस्म का लिबास उतार कर आगे बढ़ जाती हो। अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक है। इस दुनिया में इंसान को पैदा करने से कबल अल्लाह रब्बे करीम ने आलम अरवाह में तमाम तर इंसानों को तख्लीक फरमाया और उनकी रूहों को पैदा किया। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि उनसे पूछा गया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो जवाब में सब ने कहा कि बला ए रब्बे करीम, तू ही हमारा रब है। तो याद रख लीजिए कि रूह जब इस दुनिया में इंसानी जिस्म में मुंतकिल होती है तो अब रूह और जिस्म का एक ताल्लुक़ है जो बाकी रहता है। लेकिन जब इंसान आलम अरवाह में था या इस दुनिया में मौत का मज़ा चखने के बाद जब ये रूह इंसान के जिस्म से निकाल ली जाती है तो इन दोनों यानी आलमों में यानी आलम बरज़ख में, आलम अरवाह में या आलम क़यामत में जब इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो याद रखें कि इंसान की मुख्तलिफ़ कैफियतें हैं। आलम अरवाह और आलम बरज़ख में इंसान की रूह जिस्म से अलग रहती है, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा तो इंसानों के जिस्मों में उनकी रूहों को दोबारा लौटा दिया जाएगा। तारीख के औराक में ऐसे कितने ही ख्वाबों का तज़किरा मिलता है जो मुस्तक़बिल के आइनदार होते हैं, बल्कि तारीख के गुजलक सफर में कई ऐसे ख्वाब भी दिखाई देते हैं जो सिर्फ इनफरादी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे माशरे पर असरअंदाज होते हैं। जैसे क़याम पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया, उसी तरह आज भी बेशुमार आंखें निशात सानिया के ख्वाब भी देख रही हैं और अमन के भी। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ की आयत 4, 5 और 6 में मुस्तक़बिल के आइनादार ख्वाबों का जिक्र कुछ यूं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद हैं और ये सब मुझे सजदा, ये इत्तलात कौन सी दुनिया से आती हैं और किस तरह रूह को नित नए जहानों की सैर कराती हैं। ये जानने के लिए अभी आगही की गलियों में कई ख्वाबनाक सफर आपके मुंतज़िर हैं।